बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद हाशमी ऑफिशियल पे खुश आमदीद। मेरे बच्चों, मेरी बच्चियों, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। हालात पूरी दुनिया के जो गिरवट ले रहे हैं उससे हम भी मुतासर हो रहे हैं, लेकिन जो हमारे हालात बन गए हैं, एक तो खुशी की बात है अभी सनम जावेद को बेल मिल गई है, लेकिन कोई नहीं पता अगले लम्हे कोई और पर्चे FIRs उसके खिलाफ होगी। लेकिन जो जिद्दोजहद कर रही हैं तहरीक इंसाफ की ख़वातीन, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं तो तहरीक इंसाफ में नहीं हूँ, लेकिन मैं अगर मुझे मौका मिलता तो मैं इन तमाम ख़वातीन को जो जेलों में पड़ी हुई हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ की चादर जो है वो पार्लियामेंट हो सकती है। इन्होंने हमें पार्लियामेंट में नहीं आने दिया, तो इसलिए इन तमाम, यास्मीन राशिद है, वो उमर डार के वालदा हैं, एक जिद्दोजहद की है लोगों ने। इस तरीके से और भी ख़वातीन तो जेलों में जितनी पड़ी हैं, मेरे बस में होता तो सारी को मैं असम्बली के अंदर लेके आता। बहरहाल मैं अपने जज्बात का इज़हार कर सकता हूँ, मैं मुदाखलत तो नहीं कर सकता। पार्टी की अपनी सोच होगी, अपनी मरहले होंगे, क्योंकि सीटें जो बहाल हुई हैं इसको उन्होंने आसानी से हज़म नहीं कर पा रहे। ख़ास तौर पे हमारी एस्टेब्लिशमेंट कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसमें ख़तरनाक सूरत ये हो सकती है कि इस असम्बली का भी बिस्तर गोल कर दें, तो असम्बली का होना ना होना तो एक बराबर है। फैशिस्ट है, फैशिस्ट रजीम है, किसी के कोई अख्तियार नहीं है। मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे आइन के मुताबिक डील करो, कानून के मुताबिक करो। वो कहेंगे इधर आ जाओ, बड़ा तो कानून और आइन का बाप है। हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, आइन भी नहीं देता। मुझे तो किस वक्त भी वो उठा सकते हैं। ये उनकी मेहरबानी है कि इधर उनकी नज़र नहीं पड़ी। तो मैं जहाँ भी होऊंगा मैं अपनी बात पहुँचाता रहूँगा, सुनने वाले कम हो या ज़्यादा हो। ये तारीख़ का हिस्सा है, सारी उम्र सुनाई है, तो अब कैसे न सुनाए। तो ये एक जो तहरीक इंसाफ के हज़रात हैं जो इमरान खान साहब को और वो उनसे रब्ता रखते हैं, उन्हें यकीनन वो खान साहब को मिसगाइड नहीं करेंगे। यकीनन जिनका हक़ है उनको वो हक़ देंगे। अब इसमें आप देखें कि पूरी मुस्लिम लीग नून आग लगी हुई है। जो मुंह खोलता है तो मुंह से आग
کے شعلے نکلتے ہیں کہ ملنی نہیں چاہیے تھی ان کو. اللہ کے بندو کچھ تو شرم کرو, کچھ تو حیا کرو. قانون بنایا ہے آپ نے کہ یہ سیٹیں انہی کو جائیں گی جن کے پاس اکثریت ہے یا اقلیت بھی ہے, تو اس کے مطابق ان کو دے دو. آپ نے کبھی الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا دیتے ہیں. اب الیکشن کمیشن اب وہ اپنا رول ادا کرے گا. میں اس الجھن میں نہیں پڑنا چاہتا. میں ایک بات جانتا ہوں کہ ان کا وقت ختم ہو گیا ہے. جو یہ دلائل دے رہے ہیں یہ اس پہ شرمسار ہوتے ہیں. وہی باتیں زرداری صاحب کر رہے ہیں. آپ کیا سہارا بنیں گے اسٹیبلشمنٹ کا؟ اسٹیبلشمنٹ تو خود ٹوٹ چکی ہے. ہمارے اندر بھی دیکھیے, چونکہ جب سے انہوں نے فوج کو, ISI کو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی بنایا ہے, تو ایز اے پولیٹیکل پارٹی ISI کے اندر کئی وہاں ان کے فیکشنز ہیں, ان کی گروپنگ ہے. ان کی لڑائی تو لگی رہتی ہے کہ وہاں ان کو نمبر 1 کی جگہ مل سکے ISI میں, لیکن پیچھے لمبے ان کے جھگڑے ہیں. ہماری FBI والے بھی, دوسرے بھی, ان کے اپنے جھگڑے ہیں. پھر وہ اپنے پیسے بناتے ہیں, کھاتے ہیں. ان کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ ہماری اس جھگڑے سے پاکستان کو نقصان پہنچے گا. پولیٹیکل پارٹی تو یہ سوچتی ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں ملک کیا دنیا پہ اب کل سے جو ٹرمپ میں گولی چلی ہے امریکہ میں, سارا امریکہ انگشت بدنداں ہے. کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا. ان کے پہلے بھی ہوتے رہتے ہیں. کئی صدر ان کے ہیں جو فیس کرتے ہیں. کچھ ان کے سطور تھے, کیونکہ معاشرہ صدیوں کا سفر کر کے امن کی طرف آیا ہے, جمہوریت اور امن. اب میں MNA رہا ہوں اور ابھی میرا استحقاق ہے, لیکن میں اب 75-76 سال کی عمر کا ہو چکا ہوں. میں نے آج تک کوئی ریوالور, کوئی پسٹل, کوئی بندوق, کوئی وہ کیا کہتے ہیں جو ان کی ہوتی ہیں, کسی کا لائسنس آج تک میں نے نہیں بنوایا. میرے پورے گھر میں ویپن نہیں ہے. تو وہ کوئی ایسے مر گیا ہوں. آپ اپنی سیاست کو اپنے علاقے میں جہاں بیٹھتے ہیں وہاں تک عام مسائل لوگوں کے خلاف زیادہ نہ بڑھائیں. اگر ان کے لیے مشکلات پیدا کریں گے تو پھر وہ آپ کی جان کے دشمن ہو جائیں گے. گھر والے بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک میں نے نہیں بنایا لائسنس. میں امن میں بلیو کرتا ہوں, اور اس امن کی وجہ سے میں دل سے اپنی بہادری بھی محسوس کرتا ہوں. لوگ میرے نعرے لگاتے ہیں, ایک بہادر آدمی. میں تو کبھی ساری عمر نہ میں نے کوئی رکھا ہے ویپن, نہ رکھوں گا. آپ کیا رکھنا ہے؟ اب تو مرنے کے قریب ہو چکا ہوں, اور اب میں لائسنس لینے جاؤں. پاکستان کے اندر تشدد کی سیاست جو ہے اس کا دورہ ہے, اور یہ تشدد کی سیاست بڑھائی ہے ہماری عسکری قیادت نے. مشرقی پاکستان کی عورتوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا ہے, ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے ہیں.
जिस तरीके से उनको कत्ल करते थे अपनी आंखों से देख के आए हैं। तो इसलिए जो मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग इस मुल्क में अमन और जमहूरियत, दो चीज़ें ये चल पड़ी तो फिर आपकी मईशत फ़ौरन तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ेगी। लेकिन उधर भी बात अभी समझ नहीं आ रही। ये सब IMF के साथ मुआहदा करके पाकिस्तान को बेच दिया इन्होंने। यानी आज जो है 7-8 रुपये वो ऐलान फरमा रहे हैं क्या IMF से हमने कि इतनी बिजली बढ़ाएंगे, इतना पेट्रोल बढ़ाएंगे तो गरीब आदमी तो मर जाएगा। आपके घर भर जाएंगे, वो तो मर जाएगा। तो इसलिए कोई तो इस मुल्क के वजूद पर जो ज़ख्म पर ज़ख्म 30, 40, 50 साल, 70 साल, कोई एक लम्हा तो आता कि ये ना कोई उसके ऊपर मरहम रखने वाला आ जाता, नहीं आया। लोग तरस रहे हैं और बेचारे खुदकुशियाँ कर रहे हैं। मुआशरे के अंदर एक्सट्रीमिज़म आ चुका है। अभी मुल्तान में मेरी भी वो दोस्त है असद अब्बास शाह, उसकी बेटी को मार दिया है कि अपने बाप से जायदाद लेके आओ। वो इस वक्त पूरे मुल्क में बल्कि UNO तक वो मसला चल रहा है। हमारी जो पुलिस है इसमें तो उन्हें कोई नहीं रोकता ना। इसमें तो आप आगे बढ़े, असद अब्बास शाह को इंसाफ तो दें, लेकिन किसी को फिक्र नहीं है। जो MNAs हैं, जो MPs हैं, वो जिक्र ही नहीं करते। मैंने पूछा उससे, असद अब्बास से, कौन कौन MNA आपको आपकी सपोर्ट कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। हालांकि वो बासर है, उसके कहने पे MNA बनते हैं, MP बनते हैं, बेशुमार उसकी जायदादें भी हैं। लेकिन हमारी मुआशरे के अंदर मुनसिफाना निज़ाम जो बनाया जाए, सच्चाई पे खड़ा हो, अमन पे खड़ा हो, जमहूरियत पे खड़ा हो। जब हमारे जर्नैल नहीं माफ़ करते किसी को, हमारे ख़जाने को खा जाते हैं, स्मगलिंग के बादशाह बन जाते हैं, तो फिर तो सबके लिए ये मौका मिल रहा है। हो सकता है मैं भी अपने बच्चों को कहूँ कि वो स्मगलर ही बन जाए, और तो कोई रास्ता बचा ही नहीं है। खुदा हाफिज़।